دنیا کا ہر کامیاب کاروبار دراصل انسانی نفسیات کی کسی نہ کسی گتھی کو سلجھا رہا ہوتا ہے۔ دولت کمانے کا راز مصنوعات کے انبار لگانے میں نہیں، بلکہ انسانی دل میں چھپی ہوئی خواہشات، ڈر اور امیدوں کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔ جو تاجر یہ جان لیتا ہے کہ گاہک کی دکھتی رگ کون سی ہے، وہ مٹی کو بھی سونے کے پاؤ بیچ سکتا ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ آئیے آج ہم مارکیٹنگ کی دنیا کے اس پردے کو اٹھاتے ہیں اور ان 16 نفسیاتی محرکات کا جائزہ لیتے ہیں جو صدیوں سے انسان کی جیب اور فیصلے پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان باریک نکات کو سمجھ گئے تو آپ کے لیے سیلز کرنا مشکل کام نہیں، بلکہ ایک دلچسپ کھیل بن جائے گا۔ یہ 16 نکات وہ چابیاں ہیں جن سے آپ کسی بھی گاہک کا دماغ کھول کر اس کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، خواتین کے لیے حسن، قبولیت اور ستائش کا احساس۔ جب آپ خواتین کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ محض ایک پروڈکٹ نہیں خرید رہی، بلکہ وہ ایک احساس خرید رہی ہیں۔ عورت کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ خود کو خوبصورت، پرکشش اور قابل ستائش دیکھنا چاہتی ہے۔ کاسمیٹکس، جیولری اور فیشن انڈسٹری اسی نفسیات پر کھڑی ہے۔ جب ایک برانڈ اینٹی ایجنگ کریم بیچتا ہے تو وہ کریم کے اجزاء نہیں بیچتا، بلکہ وہ ہمیشہ جوان رہنے کی امید بیچتا ہے۔ وہ عورت کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کے استعمال سے اسے معاشرے میں زیادہ توجہ اور قبولیت ملے گی۔ مارکیٹنگ کا اصول یہ ہے کہ آپ عورت کے سامنے پروڈکٹ کی منطق بیان کرنے کی بجائے اس کے جمالیاتی نتائج پر بات کریں۔ اسے وہ تصویر دکھائیں جو وہ بننا چاہتی ہے۔ اگر آپ اس کے اندر چھپے ہوئے شہزادی بننے کے خواب کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو قیمت ثانوی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ نمبر 2، مردوں کے لیے خواہش، طاقت اور غلبہ۔ مردانہ نفسیات کا محور انا یعنی ایگو، طاقت اور دوسروں پر سبقت لے جانا ہے۔ مرد فطری طور پر مسابقتی ہوتا ہے۔ اس سے وہ چیزیں اپیل کرتی ہیں جو اس کی مردانگی، اس کے اختیار اور اس کے سماجی رتبے کو بڑھاتی ہیں۔ جب گاڑیوں کے اشتہار میں رفتار اور کنٹرول دکھایا جاتا ہے یا مہنگی گھڑیوں کو کامیابی کی علامت بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو دراصل مرد کی الفا بننے کی خواہش کو بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ مردوں کو بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی خواہشات کو چیلنج کریں یا انہیں طاقت کا احساس دلائیں۔ انہیں یہ باور کرائیں کہ آپ کی پروڈکٹ استعمال کرنے سے وہ اپنے دوستوں، کولیگز یا معاشرے میں زیادہ با اثر نظر آئیں گے۔ مرد ضرورت سے زیادہ سٹیٹس کا خریدار ہوتا ہے، اس لیے اسے وہ چیز بیچیں جو اسے پاورفل محسوس کروائے۔ نمبر 3، والدین کے لیے اولاد کی حفاظت اور ذہنی سکون۔ والدین دنیا کے سب سے کمزور گاہک ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کمزوری ان کی اولاد ہوتی ہے۔ ان کے لیے اپنی ذات سے زیادہ اپنے بچوں کا مستقبل اور حفاظت اہم ہوتی ہے۔ تعلیمی ادارے، انشورنس کمپنیاں اور ہیلتھ کیئر سیکٹر والدین کے اسی خوف کو سکون میں بدل کر پیسہ کماتے ہیں۔ جب آپ والدین کو مخاطب کریں تو ان کی محبت اور ذمہ داری کے جذبات کو ابھاریں۔ انہیں یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے آپ کی پروڈکٹ یا سروس نہ لی تو ان کا بچہ پیچھے رہ سکتا ہے یا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے، والدین کو اپنی جیب خالی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ والدین کو آپ دراصل پروڈکٹ نہیں بیچتے، بلکہ آپ انہیں یہ اطمینان بیچتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے اور اب وہ پرسکون ہو کر سو سکتے ہیں۔ نمبر 4، بچوں کے لیے خواب، جادو اور فینٹیسی۔ بچے منطق اور حقیقت کی دنیا سے دور ہوتے ہیں، وہ خوابوں اور تخیلات کی دنیا میں جیتے ہیں۔ بچوں کو ٹارگٹ کرنے والی کمپنیاں کھلونے، ویڈیو گیمز، کارٹون انہیں ایک ایسی دنیا فراہم کرتی ہیں جہاں وہ سپرمین، جادوگر یا ہیرو بن سکتے ہیں۔
बच्चों को बेचने का तरीका यह है कि इनके सामने हकीकत को बोरिंग और अपनी प्रोडक्ट को जादुई बनाकर पेश करें। बच्चे जिद करते हैं और वालिदैन मजबूर हो जाते हैं। मार्केटिंग में बच्चों को नैग फैक्टर, जिद करने की ताकत के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बच्चे को ये यकीन दिला दें कि फलां खिलौना या गैजेट इसे इसके दोस्तों में सबसे कूल बना देगा या इसे किसी ख्याली दुनिया का बादशाह बना देगा, तो वो बच्चा आपका सबसे बड़ा सेल्स एजेंट बन जाएगा और वालिदैन से वो चीज खरीदवा कर ही दम लेगा। नंबर 5, अमीरों के लिए हिफाजत, प्राइवेसी और इनफरादियत। एक अमीर इंसान की नफ्सियात गरीब से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसे मजीद चीजें जमा करने का इतना शौक नहीं होता जितना इसे अपनी मौजूदा दौलत और रुतबे को खोने का डर होता है। इसलिए अमीरों को सिक्योरिटी सिस्टम्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और महफूज सरमायाकारी के मंसूबे बेचे जाते हैं। इसके अलावा अमीर इंसान की एक और बड़ी नफ्सियाती जरूरत इनफरादियत है। वो चीज नहीं खरीदना चाहता जो आम आदमी के पास हो, इसलिए लिमिटेड एडिशन गाड़ियां, प्राइवेट क्लब मेंबरशिप्स और वीआईपी लॉन्जेस अमीरों को बेचे जाते हैं। उन्हें बेचने के लिए आपको ये बावर कराना होगा कि आपकी प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ खास लोगों के लिए है। अमीर इंसान प्रोडक्ट की कीमत नहीं देखता, वो इसके साथ जुड़ी क्लास और तहफ़्फ़ुज़ देखता है। नंबर 6, गरीबों के लिए उम्मीद और तकदीर बदलने का ख्वाब। गरीब इंसान की जिंदगी महरूमियों का शिकार होती है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश इन हालात से निकलना होती है। कारोबारी दुनिया गरीब की इस मजबूरी को उम्मीद बेचकर कैश कराती है। लॉटरी टिकट, इनामी बॉन्ड्स, रातों रात अमीर बने जैसी स्कीमें और सस्ते ब्रांड्स गरीबों की नफ्सियात को टारगेट करते हैं। गरीब को बेचने के लिए आपको इसे एक ख्वाब दिखाना होता है। आपकी चीज खरीद कर इसकी किस्मत बदल सकती है। सियासी नारे हों या मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्कीमें, ये सब गरीब को ये यकीन दिलाते हैं कि बस एक कदम और फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गरीब इंसान मंतक की बजाय जज्बात और उम्मीद पर सरमायाकारी करता है, क्योंकि इसके पास हाल में खुश होने के लिए कुछ नहीं होता। वो सिर्फ मुस्तकबल की उम्मीद खरीद सकता है। नंबर 7, बुजुर्गों के लिए गुजरी हुई जवानी और तंदुरुस्ती। बुढ़ापा इंसान को लाशौरी तौर पर गैर रहम और कमजोर महसूस करवाता है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो दोबारा जवान, तवाना और फाल नजर आएं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां हेल्थ सप्लीमेंट्स और जोड़ों के दर्द की अद्वियात बेचने वाले अदारे इसी नफ्सियात का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा वो चीजें जो उन्हें इनके माजी की याद दिलाएं, जैसे पुराने गाने, पुराने तर्ज का फर्नीचर भी उन्हें बेहद अपील करती हैं। बुजुर्गों को बेचने के लिए आपको उन्हें हयाते नो का एहसास दिलाना होगा। उन्हें यकीन दिलाएं कि आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो दोबारा अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं और किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इनके लिए आजादी और सेहत सबसे बड़ी नेमत है और वो इसके असूल के लिए अपनी सारी जमा पूंजी देने को तैयार होते हैं। नंबर 8, नौजवानों के लिए स्टेटस, ट्रेंड और ताल्लुक। नौजवान नस्ल भेड़ चाल और समाजी दबाव का सबसे ज्यादा शिकार होती है। इनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कहीं वो आउटडेटेड ना हो जाए या दोस्तों की नजर में इनकी अहमियत कम ना हो जाए। मोबाइल फोन कंपनियां, फैशन ब्रांड्स और सोशल मीडिया एप्स नौजवानों की इसी नफ्सियात को टारगेट करती हैं। नौजवानों को बेचने के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट को कूल और ट्रेंडी बनाना होगा। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि अगर इनके पास ये चीज नहीं है तो वो जमाने से कट गए हैं। नौजवान मंतक नहीं सुनता, वो ट्रेंड देखता है। वो अपनी शनाख्त बनाने के मरहले में होता है और वो ब्रांड को अपनी शनाख्त का हिस्सा समझता है। इसे स्टेटस बेचे, वो फौरन खरीदेगा। नंबर 9, अकेले लोगों के लिए ताल्लुक, अपनायत और बातचीत। 21वीं सदी का सबसे बड़ा अलमिया तन्हाई है। करोड़ों लोग हजूम में भी अकेले हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे कीमती चीज कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि ताल्लुक है। डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, पालतू जानवरों का कारोबार और सोशल मीडिया ग्रुप्स दरअसल तन्हाई का इलाज बेच रहे हैं। जब आप किसी तन्हा शख्स को टारगेट करते हैं तो आप इसे ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी सर्विस के जरिए इसे कोई सुनने वाला, समझने वाला या प्यार करने वाला मिल जाएगा।
यहाँ तक कि कैफे और कॉफी शॉप्स भी सिर्फ कॉफी नहीं बेच रहे बल्कि वो लोगों को बैठने और मिलने की जगह बेच रही हैं। तन्हाई के मारे लोग पैसों की परवाह नहीं करते, उन्हें बस ये एहसास चाहिए कि वो दुनिया में अकेले नहीं हैं। नंबर 10, बीमारों के लिए मौजज़ा और दर्द से निजात। बीमार इंसान दुनिया का सबसे गैर मंतकी गाहक होता है, क्योंकि दर्द मंतक को खत्म कर देता है। जब इंसान तकलीफ में होता है या इसे जिंदगी खत्म होती नजर आती है तो वो साइंस, दलील और पैसे की परवाह किए बगैर सिर्फ उम्मीद की तरफ भागता है। अस्पताल, अताइक डॉक्टर, तवीज गंडे वाले और मुतबादल अद्वियात बेचने वाले इसी नफ्सियात से खेलते हैं। बीमार को बेचने के लिए आपको फौरी आराम और मुकम्मल शफा का यकीन दिलाना होता है। वो मौजज़े का मुंतजर होता है। अगर आप इसे ये यकीन दिला दें कि आपके पास इसके दर्द का हल मौजूद है तो वो अपनी जायदाद बेचकर भी वो हल खरीदेगा। सेहत की सनत दरअसल जिंदगी की उम्मीद बेचने का नाम है। नंबर 11, सेहतमंद लोगों के लिए मुस्तकबिल का खौफ और एहतियात। सेहतमंद इंसान को दवाई नहीं बेची जा सकती, इसे एहतियात बेची जाती है, और एहतियात बेचने का बेहतरीन तरीका खौफ है। जिम, ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स और वाटर फिल्टर कंपनियां लोगों को ये खौफ दिलाकर अपना माल बेचती हैं कि आज आप सेहतमंद हैं मगर कल बीमार हो सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां इसी मॉडल पर काम करती हैं। वो आपको एक ऐसे हादसे का खौफ बेचती हैं जो शायद कभी हो ही ना। सेहतमंद इंसान को मतवज्जो करने के लिए आपको प्रिवेंशन यानी परहेज का नारा लगाना होगा। इसे बताएं कि बीमारी आने के बाद इलाज महंगा है लेकिन अभी एहतियात सस्ती है। ये व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो का खौफ अरबों डॉलर की इंडस्ट्री चलाता है। नंबर 12, होशियार और ज़हीन लोगों के लिए शॉर्टकट्स और कारकर्दगी। ज़हीन और कामयाब लोग वक्त और मेहनत की कदर जानते हैं। वो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोगों को आप रवायती चीजें नहीं बेच सकते, उन्हें एफिशिएंसी बेचनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, एआई टूल्स और प्रोडक्टिविटी एप्स होशियार लोगों की मंडी है। उन्हें बेचने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आपकी प्रोडक्ट इनका घंटों का काम मिनटों में कर सकती है। उन्हें शॉर्टकट्स बेचें। ये लोग कीमत पर बहस नहीं करते। अगर उन्हें यकीन हो जाए कि ये चीज उनकी सलाहियत और आउटपुट को दुगना कर देगी, इनके लिए प्रोडक्ट एक सरमायाकारी होती है, खर्चा नहीं। नंबर 13, कम अक्ल या सादा लोगों के लिए तस्दीक और आसानी। सादा लोग या कम तनकीदी सोच रखने वाले लोग पेचीदा बातों और मंतक से घबराते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया वैसी ही हो जैसी वो सोचते हैं। ऐसे लोगों को कन्फर्मेशन बायस, ताइदी तौसुब बेचा जाता है। सनसनीखेज खबरें, मखसूस सियासी बयानिए और साजिशी नजरियात इन लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। उन्हें बेचने का तरीका यह है कि इनकी मौजूदा सोच की तस्दीक की जाए। उन्हें ये ना कहें कि वो गलत हैं, बल्कि उन्हें कहें कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। और ये रहा सबूत, जब उन्हें अपनी सोच की तायद मिलती है तो वो इस माखज पर अंधा इत्मीनान करने लगते हैं। सादा लोगों को पेचीदा हल की बजाय इंतहाई सादा और बने बनाए जवाबात बेचें। नंबर 14, ईमान वालों के लिए यकीन, सवाब और रूहानियत। मजहबी रुझान रखने वाले लोगों के लिए इनका अकीदा इनकी जिंदगी का महवर होता है। इनके लिए हलाल और हराम की तमीज और आखिरत का अजर दुनियावी फायदे से ज्यादा अहम होता है। इस्लामिक बैंकिंग, हलाल कॉस्मेटिक्स, हज और उम्रा के पैकेजेस और सदकात जमा करने वाले अदारे इसी जज्बे को सहूलत फराहम करते हैं। उन्हें बेचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इनके अकायद के साथ हम आहंग करें। उन्हें यकीन दिलाएं कि आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से न सिर्फ उनकी दुनियावी जरूरत पूरी होगी बल्कि इनके ईमान की भी हिफाजत होगी। यहाँ इत्माद और तकद्दुस बिकता है। अगर आप इनके यकीन को ठेस पहुंचाए बगैर हल पेश करें तो वो आपके वफादार तरीन गाहक बन जाएंगे। नंबर 15, बागियों के लिए बगावत, आजादी और इनफरादियत। मुआशरे में एक तबका ऐसा होता है जो हर उस चीज से नफरत करता है जो रवायती या नॉर्मल हो। ये बागी मजाज लोग होते हैं। उन्हें आप वो चीज नहीं बेच सकते जो सबके पास है। उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया बेचना पड़ता है। हार्ली डेविडसन बाइक्स, चमड़े की जैकेट्स, टैटूज और कुछ मखसूस म्यूजिक बैंड इसी नफ्सियात पर चलते हैं। उन्हें बेचने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि आपका ब्रांड असूल तोड़ने वालों के लिए है।
उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो भीड़ से अलग और मुनफरद नजर आएंगे। इनके लिए प्रोडक्ट खरीदना दरअसल दुनिया को ये पैगाम देना होता है कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। नंबर 16, सबके लिए वक्त सबसे कीमती करेंसी। ये वो वाहिद चीज है जो अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत सबकी जरूरत है। 21वीं सदी में इंसान के पास सब कुछ है मगर वक्त नहीं है। जो कारोबार गाहक का वक्त बचा सकता है वो कभी नाकाम नहीं होता। फूड पांडा, उबर, अमेज़न प्राइम और ड्राइव थ्रू सर्विसेज दरअसल वक्त बेच रही हैं। गाहक इस प्रोडक्ट की ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है जो इसे दुकान पर जाने, लाइन में लगने और इंतजार करने की जहमत से बचा ले। अगर आप दुनिया के किसी भी इंसान को कुछ बेचना चाहते हैं तो बस इसे ये यकीन दिला दें कि आपकी सर्विस इसकी जिंदगी के चंद कीमती घंटे बचाकर इसे वापस लौटा सकती है। आज के दौर में रफ्तार ही कामयाबी है। तो अब सवाल ये नहीं कि मैं क्या बेचूं, बल्कि असल सवाल ये है कि मैं किसका दर्द दूर कर सकता हूं। अपने इर्द गिर्द देखें, नफ्सियात को समझें और सिर्फ चीजें बेचना बंद करें, हल बेचना शुरू करें। क्योंकि जब आप लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं तो दौलत खुद ब खुद रास्ता ढूंढती हुई आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। यही तिजारत का सबसे बड़ा राज है और हम तो हैं ही आपके साथ, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।